So, a very good afternoon to all of you. Very welcome to the physics live class. We are going to discuss about the applications of the Newton's second law of motion. Okay, so far we have discussed about the Newton's second law of motion. Now we are going to discuss the application of it. Okay, the first application. So let have heading application of applications of Newton's second law of motion. Second law of motion. So basically, we'll discuss 4 to 5 application. Okay, and we'll try to understand these things. Okay, so the first application we were discussing in the previous class that whenever cricketer means catch the ball, he used to lower his hand. So cricket player or cricketer, you can say cricket player lower his hand while catching the ball. Whenever cricketer try to just catch the ball, he used to. So this can be understood in a way, you know well about this. If any cricketer is catching the ball, then he is just stopping the ball. Okay, stopping means what? He is just doing the zero momentum of body. Okay, so we know about this as we know, F is equal to mv minus mu upon time interval. So this mv minus mu is equal to nothing, it's f into t. So if he lowers his hand, okay, so what is going to be here? यहाँ पे क्या होगा बच्चे? V is to be 0. Means the final velocity of ball should be 0. This is the attempt. Okay, so this mu is basically, you can say this mu is fixed. So if it is fixed, then if you are writing f into t, so if you will increase the time to stop the ball, then force will reduce. Okay, so this can be written, if we increase t, then f decreases. अगर f कम लगेगा बच्चे, f अगर कम लगेगा तो इसका मतलब, फोर्स अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इम्पैक्ट ऑन पाम जो होगा, फिल्डर के हाथ में जो या उसके पाम पे जो इम्पैक्ट होगा, दैट विल बी रिड्यूसेस. सो दैट reduces the impact on palm of fielder. Okay, so this is the case basically. So this is the case. Okay, so coming to the another application of this, the first application is cricket player lower his hand while catching the ball. Lower his hand while catching the ball. This is the first condition. And the second condition we can say, or second application we can say, a karate player can break up pile of tiles with a single blow of his hand. एक बार भी वो तोड़ सकता है. अगर एक मीन्स कह सकते हैं कि एक ब्रिक रख दिया जाए तो उसको भी एक सिंगल मीन्स कह सकते हैं कि ब्लो में तोड़ सकता है. तो अ कराटे प्लेयर can break a pile of tiles with single blow
ऑफ हिज हैंड। अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं बच्चे। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि मान लीजिए आपके हाथ में स्टिक से मारा जाए, तो दो तरीके से हो सकता है बच्चे। देखिए, दो तरीके से कैसे हो सकता है कि हम किसी को मार के स्टिक हटा लें और मार के स्टिक को छोड़े रहें। तो किस केस में ज्यादा फोर्स लगता है, किस केस में चोट ज्यादा लगती है और क्यों? कोई रीजन बताएगा? यस। सर लेने वाले में हाँ, मतलब मार के हटा लेने पे चोट ज्यादा लगेगी। यस, मार के हटा लेने पे ज्यादा चोट लगेगी या फिर ऐसे स्टिक को अगर हम लगाए रहेंगे, मार के ऐसे लगाए रहेंगे, किस पे जो चोट ज्यादा लगेगी? सर लगाए रहेंगे तब ज्यादा लगेगा। नहीं, फिर तब नहीं मार खाए, हटा लेंगे तब। तब फिर बचपन में मार नहीं खाए हो। हाँ जी, हटा हाँ लेंगे सर, नहीं है ना, तो लगेगी। इसको जरा समझा जाए कि अगर मान लीजिए हम मार के तुरंत हटा लेते हैं तो जो टाइम रहता है, टाइम लगता है इस स्टिक को, इसका मोमेंटम जीरो होने के लिए जो टाइम लगता है वो मिनिमम रहता है। जब वो टाइम मिनिमम रहेगा तो फोर्स आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर इस टाइम को अगर आप ऐसे करते हैं, ऐसे मारते हैं, इसका मतलब आपको टाइम ज्यादा लग रहा है इसकी मोमेंटम जीरो करने में या इसकी वेलोसिटी जीरो करने में। इट मींस व्हाट, द फोर्स विल बी रिड्यूसेस। दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं। आप लोग कहीं पे शो देखने जाते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, दे यूज टू ब्रेक द ट्यूबलाइट ऑन देयर बॉडीज। ओके, अपनी शरीर पे ट्यूबलाइट तोड़ते हैं ना। यस सर। यस सर। सर ये आप लोगों ने देखा होगा। और कहीं थोड़ा सा बॉलीवुड मूवीज में अगर देखा जाए, लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें एक ट्यूबलाइट से लड़ाई करने के लिए भी लोग जाते हैं, ट्यूबलाइट निकालते हैं, उससे मारेंगे, है ना। यस सर। और लोग आसानी से उस ट्यूबलाइट को अपने ऊपर फोड़ भी लेते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर। तो यहाँ पे भी वही चीज होता है बच्चे, दोनों इफेक्ट समझिए। जो आपको आर्टिस्ट होते हैं जो दिखाते हैं ट्यूबलाइट को अपनी बॉडी से वो फोड़ते हैं, तो वो जब अपनी बॉडी से वो उसको पीटते हैं तो वो स्टिक किए रहते हैं, तो उससे फोर्स कम लगेगा। जब फोर्स कम लगेगा तो उन्हें चोट कम लगेगी। और जो मार धाड़ करने वाले होते हैं ना, वो मार के तुरंत हटाते हैं, है ना, फिर देते हैं सर। तो चोट ज्यादा लगेगी। यस सर। ओके, कभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसका रीजन लिख सकते हैं, कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स विद सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो कराटे प्लेयर क्या करता है, उसका हाथ इतना तेज रहता है, वो हाथ को ले जाता है और सडन क्या हो जाता है, पूरा का पूरा मोमेंटम तुरंत जीरो होता है। पूरा का पूरा मोमेंटम बहुत ही लेस टाइम में जीरो हो जाएगा। अगर लेस टाइम में जीरो हो गया तो इसका मतलब फोर्स विल बी इंक्रीज। अगर टाइम रिड्यूस हो गया है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो उस समय किसी को मतलब हाँ किसी ब्रिक को या फिर कहीं पे भी लार्ज पढ़ा प्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, ओके नहीं करें, फोन नहीं लगा रहे, तो हम आपसे कह रहे हैं आप कमिंग नहीं लगा रहे। coming to third application. So coming to third application, in high jump athlete event, athletes are allowed to fall either on sandbed or cushions. Okay, अगर हाई जंप कहीं पे होता है तो नीचे या फिर सैंड्स होता है या फिर क्या होता है, कुशंस होते हैं। ओके, वो इसीलिए अब यहाँ पे लिखे पहले एप्लीकेशन, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। इन हाई जंप, in high jump athletic event, the athletes are allowed to fall on sand bed और कुशंस। तो अब देखिए इससे क्या होगा, कुशंस या सैंड बेड रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा। आप भी तो पूछोगे सर इससे क्या हो जाएगा, सैंड रहेगा तो क्या चोट नहीं लगेगी? लगेगी तो है ही। एक्चुअली व्हाट विल हैपन इन दिस केस इज, जब कोई सैंड पे कूदता है बच्चे,
तो उसका क्या फाइनल वो रेस्ट पे आएगा, तो इसका मतलब फाइनली उसका मोमेंटम क्या होना है, जीरो होना है ना। तो अगर मोमेंटम जीरो होने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है या टाइम ज्यादा हो जाए, है ना, अगर टाइम ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा फोर्स कम हो जाएगा। अगर फोर्स कम हो जाएगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वो क्या कम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब वो सैंड या कुशन रहने से तो कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय बॉडी टू कम एट रेस्ट वो ज्यादा हो जाता है। तो इन दैट केस फोर्स क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, so we can write the reason here, because why it is used. Sometimes the 1 marks or 2 marks question is asked on the basis of these concept. So this is because to increase the time of athlete to stop after high jump, okay, decreases. This is because the reason is this is because to increase the time of athlete to stop after high jump, decrease the rate of change of momentum, or you can say the decreased force of impact. So आप समझ सकते हैं इसको बच्चे, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर कहीं पे कुशन से आप भी या फिर कहीं पे सैंड रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन है उस पर जंप करेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी जीरो होने में कुछ टाइम लगेगा। उसी टाइम के लिए हम सैंड यूज करते हैं। अगर सॉलिड रहेगा तो इसका मतलब वो कि आपका जो टाइम होगा, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कम एट रेस्ट, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी वेरी मिनिमम। अगर वो मिनिमम हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ओके, coming to the another example means सॉकर्स आर प्रोवाइडेड इन ऑटोमोबाइल्स। जो गाड़ियां होती है ना उसमें क्या होते हैं, सॉकर्स होते हैं ना बच्चे। तो सॉकर्स इसीलिए होते हैं कि हमें अगर मान लीजिए किसी गाड़ी में सॉकर्स ना हो, तो सॉकर्स नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें वो गाड़ी उठा के ऊपर फेंकेगी और चोट लगेगी। है ना। अगर चोट लगी तो उसी चोट को हम मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, गाड़ियों में सॉकर्स यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल। सो दिस वाज थर्ड एंड कमिंग टू फोर्थ एप्लीकेशन, सॉकर्स are used in automobile. Okay, in coming to the continuation of this, so it is also suggested to wear the seat belt while driving the car. Okay, तो उससे क्या हो जाएगा बच्चे, अगर हम सीट बेल्ट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीट बेल्ट का यूज करने से क्या हो जाएगा कि जब सडनली हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन मींस पैसेंजर विल ट्राई टू फॉल फॉरवर्ड। तो अगर सीट बेल्ट रहेगी तो वो आगे की तरफ नहीं जाएगा और किसी भी मेजर या माइनर इंजरी से बच जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? ओके, सो एंड अनदर एग्जांपल, China and glasswares are packed with soft material. Whenever you are just ordering anything that is made up of the glasswares or glasswares are there, and anything which is made up of the means you can say the China solid. So वो सारी चीजें किसमें रैप होती है, वो सॉफ्ट मटेरियल की पैकिंग होती है। और सॉफ्ट मटेरियल की पैकिंग इसीलिए होती है बच्चे
सो दैट कि उसपे जो भी थोड़ा सा जर्क लगे वो एब्जॉर्ब कर ले, अदरवाइज वो ब्रेक हो जाता है. ओके, वी कैन राइट हियर चाइना and glassware are packed with soft material. Okay, so these were the basically you can say the Newton's application of the Newton's second law. Okay, coming to the Newton's third law of motion. So let's have quick recap on Newton's second law of motion. So what was the Newton's second law of motion? According to Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied on the body. Okay, means जितनी तेजी से किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा, जितनी भी तेजी से, वो डिपेंड करेगा या फिर वो इक्वल हो जाएगा कि फोर्स उस पर कितनी तेजी से लग रहा है या फोर्स के बराबर हो जाएगा. ओके, तो न्यूटन साहब ने अपना तीसरा नियम दिया, तो जिसको हम लोग मिस इंटरप्रेट भी करते हैं. कैसे मिस इंटरप्रेट करते हैं ये भी बताता हूं. न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो अब न्यूटन साहब ने क्या कहा कि एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. व्हाट ही सेड? एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अच्छा, ये तो चलिए अच्छी बात है, एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. लेकिन आप लोग उसे कैसे लेते हैं कि आज वो हमको मारा है तो कल हम उसको मारेंगे तभी जाके एक्शन रिएक्शन है ना, यही आप सोचते हैं. Yes. लेकिन ये ऐसा नहीं होता बच्चे, ये होता है these acts simultaneously. ये सारे एक साथ काम करते हैं. कौन? एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट्स साइमल्टेनियसली. ओके, सो ये नहीं होता कि आज कोई मारा है तो कल हम उसको मारेंगे तो तब जाके एक्शन रिएक्शन हो जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज ऑलवेज, अभी मारेंगे अभी reaction. always acts in a, you can say, pair, and these acts simultaneously. Okay, so according to Newton's third law of motion, every action there is equal and opposite reaction. Okay, means every action there is a equal and opposite reaction. Let's say there are two bodies. This is body A and this is body B. Though, so if we can write force on A by B, force on A, this is FAB. Force on A by B, and this is like this. This is force on B by B, FBA. Force on B by A. So these are always equal and opposite. FAB is equal and opposite to the FBA. In magnitude, both will be same, but the direction will be differing. Okay. In another words, you can see, suppose this is table. Okay. And the table, you are putting your book here. This is your physics book. And if its weight is acting vertically downward, its weight, that is your mg, is vertically downward. That is the, you can say this is action. What is this? This is your action. And in the response of action, there will be the force that will be acted by the surface of this surface. This will be your reactionary force. This will be your reactionary force. Reactionary, or you can say this is your normal force. Normal force. Okay. So it is normal force. So every action there is equal and opposite reaction.
you can write here like this: R is equal to M into G. Okay, so this will be your R is equal to mg. Okay, so you should remember these. You should remember this. Suppose this is table and this is your book or any object, and if weight is acting downward, then reactionary force means the force acted by this surface will be always perpendicular to the surface of the body. This is reactionary force. This is always equal to W, but direction will be differing, means but the magnitude will be same and direction will be differing. Okay, I hope it is clear to all of you. Yes, sir. Okay, coming to the basically Newton's third law of motion. सर ये हर कंडीशन में एप्लीकेबल रहता है सर, R equals to mg. Okay, so this is applicable only in two cases: if body is at rest or moving with uniform velocity. Okay, R is equal to Okay, mg सब जगह का मतलब ये हो गया for rest or body moving यूनिफॉर्म मोशन. with uniform velocity or constant velocity. यस. So ये दो कंडीशन में बच्चे ये ट्रू रहता है. बाकी कंडीशन में हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम यूज करते हैं, बट दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली इन दीज टू कंडीशंस. ओके, सो कमिंग टू द अनदर पार्ट. अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द थर्ड लॉ? applications of third law. So what are the applications? Let's see here. The first application is recoiling of the gun, means जो बंदूक झटका देती है पीछे की तरफ, it's only due यस सर, रिकॉइल वेलोसिटी. yeah, recoiling of gun. Recoiling of gun means if any you can say any pistol or any gun is there and we are just firing the bullet from the gun. Okay, तो जब गोली निकलती है at that instant पे हमें पीछे की तरफ जर्क लगता है, झटका लगता है. ओके, तो जितने फोर्स से कोई भी कह सकते हैं कि जितने फोर्स से कोई भी बुलेट निकलेगी उतने ही फोर्स से हमें पीछे की तरफ क्या मिलेगा? जर्क मिलेगा. ओके, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है. इट इज अवॉइडेड बाय मींस बाय होल्डिंग द गन इन सच अ वे सो दैट योर मास शुड बी इंक्लूडेड इन मास ऑफ द गन. इससे अवॉइड कैसे किया जा सकता है? वो झटका कम से कम कैसे लगे, वो झटका मिनिमाइज कैसे हो जाए बच्चे? वो कैसे कर सकते हैं कि हम बंदूक को इस तरह से पकड़ें कि हमारा जो मास है वो मास ऑफ द गन में इंक्लूड हो जाए. तो उतना जर्क हमारी बॉडी के लिए कुछ पता ही नहीं चलेगा, उतना फोर्स कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना. जैसे बच्चे आप लोग 9th में पढ़े थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था ना आप लोग ने 9th में, तो ये कहते हैं ना कि अगर इस पेन को छोड़ते हैं तो पेन नीचे जाता है ना. इट्स ओनली ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ. अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, इसके कारण जाता है ना बच्चे. तो ये भी हम पढ़ रहे हैं बच्चे कि अगर दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ इक्वल है, तो ये अर्थ के पास क्यों जाता है, अर्थ क्यों इसके पास नहीं आता? या फिर आप दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं बच्चे. यस, इट्स ओनली ड्यू टू द मास. अर्थ हैज ग्रेटर मास. यस, या फिर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूं, जैसे आप बात करते हैं बच्चे, किसकी बात करते हैं? मून की और अर्थ की बात करते हैं ना. और ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये करता है अगर देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स देन दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर. दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, मतलब फोर्स लगेगा ही लगेगा. तो इसका मतलब मून और ये अर्थ मिल क्यों नहीं जाते, दूर दूर क्यों हैं जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो, है ना. तो फिर यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है बच्चे कि मास इनका इतना ज्यादा है कि इनके कारण जो है कोई किसी की तरफ आ नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा जो यूनिवर्स है ना बच्चे, दीज आर इन इक्विलिब्रियम. कोई अगर किधर भी मूव करना शुरू किया ना तो पूरा सारे प्लेनेट, सारी गैलेक्सीज, सारे स्टार सब डिस्टर्ब. तो वो केवल सर्कुलर मोशन करते हैं तो वो सबके रेस्पेक्ट में होता है. ओके, सो दिस इज बेसिकली यू कैन से
कि अगर आपने कहा कि ये हमने एक गन बना दिए, अगर हमने गन बनाया, अब गन हमसे बहुत अच्छी तो बनती नहीं है, लेकिन तब भी जो हम लोगों ने बचपन में खेली थी उस तरह से बना दें। यस, कट्टा सर। चाहे जो कह लो तुम, हैं? So this is basically bullet. Okay, so you can say the force on bullet is your, you can say, action. This will be your action. And force on gun, this force on bullet will be in this direction, and force on gun will be in this direction. Force on gun, so this will be reaction. So this will be your reaction. So this is basically the recoiling of gun. So recoiling of the gun is example of what? This is an example of the Newton's third law of motion. And the next example we can say, or next application we can say, to walk we press the ground in backward direction with foot. अगर हम लोग चलते हैं ना बच्चे, तो चलते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड को पुश करते हैं, तो ग्राउंड भी हमें उतने ही फोर्स से बैक पुश करता है, तभी तो हम चल पाते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो वी कांट वॉक। मड में देखिए ना, मड में हम चल नहीं पाते, क्यों? क्योंकि ग्राउंड रिएक्शनरी फोर्स नहीं लगा पाता है, तो क्या वहां पे हम चल पाएंगे क्या? या इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड और आइस। सैंड या आइस पे हम लोग चल नहीं पाते हैं। इट्स ओनली ड्यू टू द नो रिएक्शनरी फोर्स एक्टेड बाय द ग्राउंड। ओके, सो in the second case we can write when we walk, when we walk, then our foot push the earth, this is your action, and in response to that, our foot is pushed by earth by same force. So this will be your reaction. So this is your action and reaction. Okay, and in another example you can say, in Newton's third law of motion, the third application is your jet aeroplanes and rockets. You know बच्चे, rockets when they used to just go upside, तो जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं बच्चे, तो at that instant पे क्या होता है, they used to release means gases, गैस को नीचे की तरफ रिलीज करते हैं, वो एक्शन फोर्स लगाता है, और उसी के रिस्पॉन्स में रिएक्शन फोर्स लगता है, तो रॉकेट पे लगता है, तो रॉकेट ऊपर जाता है, वो गैस नीचे की तरफ छोड़ता है, एक्शन हो गया, और ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन अब ये गैस क्या करेगा, रिएक्शनरी फोर्स ऊपर लगाएगा। ओके, तो मतलब कह सकते हैं, तो द हॉट गैसेस कम आउट विथ नोजल विथ ग्रेट फोर्स। ओके, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, the equal and opposite reaction pushes the jet planes and rocket upward with great speed. This will be known as your reaction. Okay, so we can write here, when rocket goes up, okay, the fuel is burned and produces large quantity of hot gases, okay, with great force.
with great force. So this will be your action, you can say. This will be your action. Okay? And opposite to that, rocket will pushed up, and this will be your reaction. So this is one of the application of the Newton's third law of motion. Now coming to the another application we can discuss, rowing of boat. नाव को चलाते हैं बच्चे, जो अगर कभी आप देखिए नदी में, इन रिवर और मींस यू कैन से इन ओशंस, तो जो लोग नाव चलाते हैं, इन दैट केस में क्या होगा, बोटमैन क्या करता है, बोट को रो करता है. रो कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ सम मींस कुछ उनके पास स्टिक रहती है ना, तो वो क्या करता है, वो पीछे की तरफ वो क्या करता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, तो वो एक्शन हो जाता है. इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट एक्शन द रिएक्शनरी फोर्स लगता है, तो बोट हमारी क्या हो जाती है, आगे चली जाती है कि नहीं चली जाती है. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ यू कैन से द न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओके, अच्छा, दूसरा भी कभी कभी ये पूछा जाता है, होस पाइप का मतलब जानते हैं बच्चे, जो कह सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड में जो पानी की जो पाइप होती है उसको होस पाइप बोलते हैं, है ना. तो होस पाइप को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है. क्यों मुश्किल होता है, इट्स ओनली ड्यू टू कि होस पाइप से जो वाटर निकलता है बहुत तेजी से निकलता है, तो उस समय जो फोर्स लगता है वो एक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है. In response to that, there will be the another force that will be known as the reaction force, and that will be acting backward. तो वो उस समय बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगता है, तो उसको होल्ड करना मुश्किल होता है. ओके, एंड अनदर एग्जांपल वी कैन डिस्कस कि अगर कोई बंदा, आप सोचिए बच्चे कि बोट से वो आता है जमीन पर, तो जब वो बोट से आता है तो आप देखिए ना, जैसे ही बोट से आया बोट पीछे की तरफ चली जाती है. तो वो क्यों हुआ, क्योंकि पैर से उसने एक्शन फोर्स लगाया. इन रिस्पॉन्स टू दैट ये क्या हो जाएगा, फोर्स आगे बढ़ने का प्रयास किया, जैसे ही वो आगे बढ़ा बोट पीछे की तरफ चली जाएगी, है ना. फोर्स ऑन बोट जो लगेगा वो एक्शन हो जाएगा, और जो मैन पे फोर्स लगेगा उसके रिस्पॉन्स में वो रिएक्शन हो जाएगा, है ना. या दूसरा एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं बच्चे कि अगर मान लीजिए किसी भी बॉल को अगर सरफेस पे अगर हम बार बार उसको पुश करते रहे तो वो रिबाउंड होता है. दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर यू कैन से द एक्शन एंड रिएक्शन. Okay, so this was your, you can say, the Newton's third law of motion. In the next term we will be doing about the conservation of momentum and some question based on these, and means many more things will be discussing in the next class. Okay, so that's it for today. Okay, thank you. Bye, sir. Okay, bye. Bye, sir.